Hello everyone, we'll be starting in about 3 minutes from now. Sir, Yes. Yes, tell me. this seminar is for how many days? This seminar is just 45 minutes. So basically, it's just for today. Yeah, it's just a seminar. We'll be giving out some information, and then we'll be giving out some more details about how your computer science can be helped. We'll just start in a minute. Okay.
Okay, so first of all, hello everyone. We'll start now. Am I clearly audible? Yes, sir. Okay, great. Just a second. Okay, so in this seminar, what we're going to be talking about is computer science on an HSC computer science, HSC level. So how does it work? A lot of people were almost say 1.5 months from our board examinations, and computer science continues to be a big problem for a lot of people. So how can we handle computer science, and how when you guys took computer science, most of the students, in fact, when they take computer science, they don't take computer science considering the syllabus. I mean, hardly anyone takes computer science thinking about the okay, computer science mein ye padhna hai, ye padhna hai, ye padhna hai. No, most of the people who take computer science, the way they take computer science is by hearing from someone that computer science बहुत scoring subject है, computer science में आगे जाके काफी scope है, ये है वो है. सो ये सुन के हम कंप्यूटर साइंस ले तो लेते हैं, लेकिन फिर होता यह है कि फर्स्ट जब ये एफ आई जेसी आता है तो एफ आई जेसी में फिर आके पता चलता है कि यार कंप्यूटर साइंस उतना इजी नहीं है, क्योंकि कभी सिलेबस देखा ही नहीं उसका. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रगल इन कंप्यूटर साइंस देन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मधुरा कदम, यू विल हैव टू, आपके वहां पे लेफ्ट साइड पे आपको एक माइक का आइकन दिखेगा. यू विल हैव टू. सो कंप्यूटर साइंस जो लोग ले लेते हैं और उसके बाद में फिर वो जो स्ट्रगल स्टार्ट होता है, तो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट हैपेंस इज कि कंप्यूटर साइंस में सी प्लस प्लस नहीं समझ रहा, ये नहीं समझ रहा, वो नहीं समझ रहा, एंड ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल स्ट्रगल विद. बट इज कंप्यूटर साइंस रियली डिफिकल्ट? Is computer science really scoring? And if it's scoring, then how is it scoring? Because हमको तो नहीं समझ आ रहा कि हम कैसे 12th स्टैंडर्ड में स्कोर करने वाले हैं. सो इनफैक्ट सिलेबस ही कैसे क्लियर होगा ये नहीं समझ में आ रहा है बहुत सारे लोगों को. सो हाउ विल दिस वर्क? So let me talk about that now. So first of all, here's what you need to understand. Is computer science important? Computer science is not important to get admission into an engineering college. Absolutely not. But computer science is very important. Now, why? So before we talk about computer science, let's talk about HSC. Is HSC important? अब होता क्या है, क्लासेस वाले आपको बोलते हैं कि HSC important नहीं है. But actually speaking, HSC बहुत important है. ठीक है? Now I'm not saying CET important नहीं है, JEE important नहीं है. I'm saying HSC equally important. Why? What is MXT CET? What is JEE? These are entrance examinations, right? So these are entrance examinations. The moment you enter an engineering college, the marks of these examinations are useless. Because ये entrance के लिए थे तो आप तो enter कर लिए. अब होगा क्या कि अब आपके 4 years की engineering निकल जाएगी, फिर आएगा जॉब का टाइम. तो जॉब के टाइम पे अपना पोर्टफोलियो बनाओगे, ठीक है.
जब अपना पोर्टफोलियो बनाओगे उसमें आपको एक अपनी 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट अटैच करनी पड़ेगी। एट दैट पॉइंट आपकी 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट अगर अच्छी नहीं होगी वो चीज मैटर करेगी, ठीक है ना। नॉट जस्ट दिस, देयर आर सम कॉलेजेस, ठीक है, there are some MBA colleges or masters colleges where they have a criteria, they have a set criteria that आपको HSC में 75%, 4 years engineering की बात कर रहा हूँ मैं, आपको 12th में 75% या 85% चाहिए है तो ही आपको हमारे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। So at that point that's where you get stuck. So I'm not saying HSC is not JEE is not important, CET is not important, I'm saying HSC is equally important, ठीक है, बिकॉज वो मार्क्स आपको आज नहीं लेकिन 4 years down the line, 5 years down the line आपको मार्क्स काम आएंगे। योर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एंटर हो गए, खत्म हो गया मार्क्स, बट दीज योर 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू कैरी फॉर लाइफ टाइम आपके साथ में रहेगी। तो 12th स्टैंडर्ड की आपकी मार्कशीट अच्छी होनी चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट कैसे अच्छी होगी, तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इंग्लिश है, ये सारी चीजें तो हम कर रहे हैं। इंग्लिश हो जाता है, इंग्लिश कोई करता नहीं, इंग्लिश हो जाता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है वो तो हम फिर भी कर रहे हैं, ठीक है, अग्रेसिवली कर रहे हैं, इनफैक्ट एक्स्ट्रा टाइम मिला है ये साल तो। बट कंप्यूटर साइंस हम नहीं कर रहे। अब कंप्यूटर साइंस को हम इतना ध्यान नहीं दे रहे, जबकि कंप्यूटर साइंस ज्यादा इजी टू कवर है, स्कोरिंग है, एंड 200 मार्क्स का अकेला सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 8 chapters, that's it, there are only 8 chapters in computer science। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ 8 chapters हैं जो 200 मार्क्स का है, हम उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? Now you do the math, forget me saying, you do the math, 200 मार्क्स का कंप्यूटर साइंस है, 650 मार्क्स का HSC है, so 200 मार्क्स का अगर कंप्यूटर साइंस और 650 मार्क्स का HSC है, that is 31% of your HSC score। आप डिवाइड करके देखो, परसेंटेज निकाल के देखो, 31% of your HSC score is computer science। So how can we say computer science is not important? Computer science is extremely important. Now, the thing is how to study computer science, what to study in computer science, how to proceed with it. Now, computer science जो है, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि 8 chapters हैं आपके computer science। अब ये जो 8 chapters हैं, ये 8 chapters किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, क्या वेटेज है इन चैप्टर्स का, अब हम उसके बारे में बात करें। सो देयर आर 2 पार्ट्स। पार्ट 1 जिसमें ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें नॉट पार्ट 1 इज नॉट पेपर 1 एंड पेपर 2, फर्स्ट हाफ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट हाफ में आपके पास दोनों चीजें हैं, आपके पास आपका थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल्स, दोनों चीजें इसमें कवर होती है, ठीक है। फिर आता है आपका दूसरा पार्ट। ये जो आपका दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी चैप्टर्स है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ 3 चैप्टर है, सेकंड पार्ट में 5 चैप्टर्स है 8 में से, ठीक है। 8 में से फर्स्ट हाफ में 3 चैप्टर्स हैं और सेकंड हाफ में 5 चैप्टर्स। ये जो पहला साइड है ना, ये पहले साइड में सिर्फ 3 जो चैप्टर्स हैं, these 3 chapters hold 160 marks। How many? 160 marks। ये 160 मार्क्स सिर्फ ये 3 चैप्टर्स से आते हैं। इमेजिन करो, just do these 3 chapters, 160 marks। Now which are these 3 chapters? There's a chapter called C++, that's the first chapter। Your second chapter is HTML, okay, HTML। Your third chapter is 8085। ये 3 चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जो 160 मार्क्स का वेटेज होल्ड करते हैं। Now in a minute we're going to talk about syllabus reduction, ठीक है, एंड उसके बाद में ये चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। so sorry। Now अब बच गए कितने? 5 चैप्टर्स। ये 5 चैप्टर्स जो है आपके, ये प्योरली थ्योरी चैप्टर्स हैं, ठीक है। सो दीज चैप्टर्स दे हैव, इन चैप्टर्स में कोई भी प्रैक्टिकल वाला पार्ट नहीं है, प्योरली थ्योरी चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। ये जो 3 चैप्टर्स की मैंने बात की जिसमें 160 मार्क्स कवर होते हैं, ये आपके बोर्ड प्रैक्टिकल्स और थ्योरी दोनों मिला के 160 मार्क्स होता है, जिसमें 100 मार्क्स की बोर्ड प्रैक्टिकल्स हैं और 60 मार्क्स आपके थ्योरी पेपर्स में आने वाला है। वो कैसे, वो मैं आपको पूरा ब्रेकअप भी बताऊंगा थोड़ी देर। अब जो वो 5 चैप्टर्स बच गए, उसमें से सिलेबस रिडक्शन जो हुआ है, जो गवर्नमेंट ने अभी कोविड के वजह से 25% सिलेबस रिडक्शन किया,
वो 25% सिलेबस रिडक्शन में से जो हमारे 5 थ्योरी चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स तो ये थ्योरी और प्रोग्रामिंग, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों वाले 3 चैप्टर्स 160 मार्क्स है। अब बच गए 40 मार्क्स के 5 चैप्टर्स। ये जो 5 चैप्टर्स हैं, ये 5 चैप्टर्स में एक चैप्टर ओमिट हो चुका है, निकल चुका है। कौन सा? डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज डेटा स्ट्रक्चर। तो ये एक चैप्टर निकल चुका है। हम सिलेबस रिडक्शन के बारे में हम और बात करेंगे, बट this is the only chapter that has been removed from your computer science syllabus. So technically now it might sound like, अब यहाँ पे आपको syllabus reduction जो है ना, syllabus reduction to be honest computer science में कोई syllabus reduction, significant syllabus reduction नहीं हुआ है, और 25% तो बिल्कुल नहीं हुआ है। अब आप बोलोगे नहीं, हमने तो वो डॉक्यूमेंट देखा था, एक डॉक्यूमेंट आया था हमारे पास, तो करेक्ट है, डॉक्यूमेंट आया था, मैंने भी देखा था, बट वही डॉक्यूमेंट को आप ओपन करो, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है उसको समझो, ठीक है। दिस इज अ वेरी बिग मिसकॉन्सेप्शन दैट पीपल हैव कि 25% सिलेबस रिड्यूस हो गया कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में 25% सिलेबस नहीं रिड्यूस हुआ है, एक चैप्टर और 5 क्वेश्चन रिड्यूस हुए हैं खाली, ठीक है। नाउ इफ यू ओपन दैट डॉक्यूमेंट जो सर्कुलेट हुआ था, अगर आप में से किसी ने अब तक नहीं देखा है वो डॉक्यूमेंट, जस्ट रीच आउट टू मी लेटर ऑन माय नंबर एंड आई विल शेयर दैट डॉक्यूमेंट विद यू। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट में हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि ओके वी आर रिड्यूसिंग 25% सिलेबस। अब अगर आप उसको डॉक्यूमेंट को देखोगे तो 25% कम होता भी है, तो अब आप बोलोगे कि अभी तो आपने बोला कि नहीं हो रहा था। नाउ हियर्स व्हाट्स हैपनिंग, उसका एडवांटेज आपके लिए नहीं है, उसका एडवांटेज आपके कॉलेज टीचर के लिए। कैसे? उस डॉक्यूमेंट में टेबल बना हुआ है, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, और उसके राइट साइड पे एक टर्म मेंशन्ड है, ठीक है। देयर आर 2 टर्म्स, एक टर्म है हर लाइन के सामने, एक टर्म है, ईदर वन ऑफ द टर्म्स है, एक है सेल्फ स्टडी और एक है नॉन इवैल्यूएटिव, ठीक है, सेल्फ स्टडी और नॉन इवैल्यूएटिव। अभी जो सेल्फ स्टडी है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये चैप्टर टीचर ने आपको नहीं पढ़ाना है 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है, बट आपको एज अ स्टूडेंट पढ़ना है। इट इज फॉर सेल्फ स्टडी एंड इट विल बी इवैल्यूएटेड, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टेबल है इसके नीचे एक लाइन लिखी है उन्होंने, सेल्फ स्टडी these chapters may teachers can adjust these chapters in the form of assignments as they have been taught in the 11th standard। तो उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये चैप्टर टीचर को पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया हुआ है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं 12th में 11th स्टैंडर्ड के, तो ये पार्ट पढ़ाया हुआ है, तो उसके बेसिस पे वो बोल रहे हैं कि उन्होंने 25% सिलेबस रिडक्शन किया, जबकि 25% नहीं हुआ है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बाकी के पार्ट को टीचर के पढ़ाने का काम कम कर दिया, स्टूडेंट के पढ़ने का काम नहीं। तो आपको तो पढ़ना उतना ही है। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर नाम का एक चैप्टर है जो निकाल दिया जा चुका है। अब इससे क्या होगा, ये चैप्टर 8 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। अब ये जो चैप्टर 8 मार्क्स का है, ये पेपर 1 में, ठीक है। अब जो थ्योरी पेपर आएगा, थ्योरी पेपर 1 का अलग आएगा, पेपर 2 का अलग आएगा। पेपर 1 में ये चैप्टर है, तो जिस पेपर 1 में आपका C++ और HTML भी है, तो होगा क्या, ये चैप्टर जो निकल गया है इसके मार्क्स अब बाकी बचे हुए चैप्टर्स जो है उसमें डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। सो वो जो हम याद है हमने स्टार्ट में बोला था 160 मार्क्स, वो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस 164 मार्क्स हो जाता है, ठीक है। तो C++, 8085 और HTML ये 3 चैप्टर्स मिला के 164 मार्क्स आपके सिर्फ इन 3 चैप्टर्स से आते हैं, ठीक है। अब बच गए 4 चैप्टर्स, उन 4 चैप्टर्स में से आपके बाकी के 36 मार्क्स आने वाले, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर सिलेबस इज ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट आई मीन चैप्टर वाइज। आपको अगर चाहिए है सो मैं आपको वापस से मैं बोल रहा हूँ, आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, C++, 8085 and HTML. These 3 chapters comprise of 160 marks. The rest of the 5 chapters, the rest of the 4 chapters, data structure is removed. Rest of the 4 chapters comprise of 36 marks. Okay, that's how the computer science syllabus is structured for this year. So, अगर किसी ने ये 3 चैप्टर्स कर लिए तो 164 मार्क्स 200 मार्क्स के सब्जेक्ट में से, उसका मतलब होता है आप ऑलरेडी ये 3 चैप्टर अगर किसी ने कर लिए वो 80% के ऊपर ऑलरेडी ये 3 चैप्टर्स में कवर हो चुका है।
तो अगर किसी ने ये 3 चैप्टर्स थरली कर लिए 180% आपका कंप्यूटर साइंस में यही 3 चैप्टर से आ जाएगा। 160 is 80% ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो वहां पे ही आपका 80% जो है वो टारगेट टच हो जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है तो क्या कंप्यूटर साइंस में स्कोर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। This is my, by the way, I did not introduce myself in the beginning. My name is Ibrahim Rahmani, and I run vocational academy. I've been running vocational academy for the last 10 years now. And in my last 10 years of experience, what I've learned is computer science जो है ना, computer science में 200 और 200 भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। But I'm going to be very blunt and very honest with you. ठीक है, मैं आपके साथ आपको कोई भी चीज शुगर कोट करके नहीं बोलने वाला, मैं आपको कोई भी चीज बहुत फ्रैंकली बोलने वाला हूँ। आप अगर ये सोच रहे हो कि अब तक के आपने, अब हर किसी को अपना इंडिविजुअल पता है, अगर आपने अभी तक के कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन चालू नहीं की है और अगर आप सोच रहे हो कि आपको 200 और 200 आ जाएगा, तो वो गलत सोच है। ठीक है, मत आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट दैट शुड नॉट इवन बी योर टारगेट। कंप्यूटर साइंस में हमारे इंस्टीट्यूट में in the last 10 years we've had 198 out of 200. That's third highest Maharashtra state. But at the same time 198 हमको हर साल नहीं आता, our average, so हमारे पास एक साल में approximately about 90 students होते हैं। 90 our institute is specifically for Maharashtra State Board Computer Science, so 90 students होते हैं और 90 स्टूडेंट्स जो हैं, ये 90 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स होते हैं साल में जो 191 to 197 के बीच में आता है। 198 भी कभी कभी आता है, 198 हर बार नहीं आता, 197 आता रहता है हर साल, ऑलमोस्ट हर साल आता रहता है 197। सो 191 to 197 के बीच में साल में 90 में से 10 स्टूडेंट्स होते हैं। 180 का जो रेंज है, 180 to 190 के बीच में हमारे पास 25 स्टूडेंट्स होते हैं यूजुअली साल में, और 170 to 180 मतलब 170 अबव का जो रेंज है उसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 50 to 55 स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी होते हैं वो 150 वाले रेंज में, 150 to 170 के बीच में, मतलब 30-40 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं 150 to 170 के रेंज में आता है। हर किसी का अपने अपने पढ़ने के ऊपर होता है ये सारी चीजें, हम तो सबको सेम ही चीज पढ़ाने वाले हैं, बट एंड में स्टूडेंट खुद भी कितना एफर्ट लेता है वो भी मैटर करता है। बट अगर आज की डेट में आप अपना टारगेट 200 मार्क्स का रख के चलोगे, मेरे को 200 और 200 ही लाना है, वो टारगेट गलत होगा, अनरियलिस्टिक होगा, एंड इट विल ओनली मेक यू सफर। सो डोंट हैव दैट टारगेट। टारगेट रियलिस्टिक टारगेट रखो कि 180 का रेंज क्रॉस करना। ठीक है, 180 आपने क्रॉस कर दिया कंप्यूटर साइंस में, मतलब इट्स 90 अबव, 90% अबव, सो दैट शुड बी योर टारगेट। नाउ 180 का जो ये मार्क्स का रेंज है, ये मार्क्स के रेंज में आपको आपका HSC स्कोर जो है, HSC स्कोर इतना करने के बाद में भी कम से कम 27% से बढ़ जाता है अगर आप 180 के रेंज में चले गए तो, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। मतलब 27% इमेजिन करो, बहुत बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर कंप्यूटर साइंस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इज। ठीक है, this is why we say that computer science is scoring, and it is possible to score. I'm not saying it's not possible to score. Now I'm about to move on to my next topic, which is journals and submissions and stuff like that. But before I go on to that, I would like to ask if anyone has any questions. Drishti, would you like to ask something? Himanshu, Sharvari, Mathura Kadam, okay, so I'll move on. Now the next thing that we need to talk about is how does the journal, viva, practical, all of this happen? तो होता क्या है कि आपका प्रैक्टिकल्स जो है वो 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स है। अब ये जो 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स है, ये 50 मार्क्स पेपर 1, 50 मार्क्स पेपर 2। अब ये कहाँ से आता है, कहाँ से पूछा जाता है? तो हर कॉलेज की अपनी जर्नल होती है।
ठीक है, एवरी कॉलेज हैज इट्स ओन जर्नल सेट। अब लास्ट ईयर तक इस जर्नल सेट में अगर आप आईआईटी पेस के ये देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, तो आईआईटी पेस में आइडियली अप्रोक्सीमेटली अबाउट से 25 क्वेश्चन CS1 एंड 20 क्वेश्चन CS2, ये एवरेज होता है। विद्यानिधि कॉलेज अगर देखेंगे तो 16 क्वेश्चन CS1 एंड 10 क्वेश्चन CS2, इस तरीके से होता है। तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है ये चीज। But this year we're expecting not more than 10 in each college, ठीक है। So our expectation is कि हर कॉलेज में 10 क्वेश्चंस होने चाहिए, मतलब CS1 में 10 और हर CS2 में 10, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, बोर्ड प्रैक्टिकल्स में क्या होगा? तो बोर्ड प्रैक्टिकल सबसे पहले होने वाले कब है? बोर्ड प्रैक्टिकल्स का तो कोई टाइम टेबल आया नहीं है। So let's understand this. Now this is not just computer science, I'm talking in general also. I don't have any information, but based on our understanding and my discussion with the people around me, here's what we've discussed. I repeat myself, I don't have any information from any official source. I am telling you based on our understanding and evaluation. Now what happens is कि last year तक क्या होता था? तो last year तक ये होता था 18th या 21st Feb से बोर्ड एग्जाम्स चालू हो जाते थे, थ्योरी रिटन पेपर्स चालू हो जाते थे। अब ये जो पेपर्स चालू होते थे, ये पेपर्स से अगर 21st फेब से बोर्ड एग्जामिनेशन है, थ्योरी पेपर्स है, तो 18th फेब, 1st फेब टू 18th फेब जो था वो आपके बोर्ड प्रैक्टिकल्स होते थे। इसका नोटिस आता था लिटरली 2 दिन पहले, मतलब 29 जनवरी या 30 जनवरी को नोटिस आता था, स्केड्यूल लगता था कि अच्छा बोर्ड प्रैक्टिकल्स का ये स्केड्यूल है। सो 18 to 20 डेज का पीरियड होता था जहां पे सारे बोर्ड प्रैक्टिकल्स कंडक्ट किए जाते थे, एंड दिस वाज 1-2 days before your board exam. Now this time your board exam is starting from the 23rd of April. So जो चीज जैन में होती थी वही चीज अब मार्च में होने वाली है, वही 20 days का गैप आएगा। Maybe with social distancing and stuff like that थोड़ा और आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि 20-23 days, मतलब समझ लो कि 1st मार्च जो है, सॉरी 1st अप्रैल जो है आपका, 1st अप्रैल से आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस, आपके बोर्ड प्रैक्टिकल्स शुरू होने हैं। 23rd अप्रैल हमारी एग्जामिनेशन डेट है, ठीक है। सो 23rd अप्रैल अगर हमारा रिटन पेपर चालू हो रहा है, तो 1st अप्रैल टू 20th अप्रैल के बीच में आपका बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड प्रैक्टिकल्स जो है वो कंडक्ट होने वाला है। You can assume that. Now, there's another discussion in our circle, and that discussion is there's a second wave of COVID. So what will happen if there's a second wave of COVID? There are some cities under lockdown again in Maharashtra, and there are some places where the cases are rising, 7,000 cases a day, Maharashtra mein. So what's happening is if this is a second wave and if this is increasing, so what will happen? The board exam will happen at its time, but what about practical examinations? That might get pushed after your board exam. तो आपका बोर्ड एग्जाम रिटन पेपर खत्म हो जाएगा, आपका लास्ट रिटन पेपर खत्म हो रहा है 20th मई को, तो 20th मई के बाद में हो सकता है कि आपके रिटन पेपर्स जो हैं, सॉरी आपके बोर्ड प्रैक्टिकल्स जो है वो 20th मई के बाद में स्केड्यूल हो जाए या लाइन अप हो जाए। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, नाउ वंस अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, there's no guarantee that this will happen. This is circumstantial and you should wait for official announcements from the Maharashtra State Board. Okay, we'll notify you, we'll update you about it, but when we hear from them, this is just our understanding जो मैंने आपको बताई है। अच्छा, now another time to study computer science or a good time to study computer science theory is the 10 days gap. तो अगर आप अपना टाइम टेबल देखोगे तो 9th को आपका मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स का एग्जामिनेशन हो रहा है और 9th मई को, और 18th मई को आपका कंप्यूटर साइंस 1 का पेपर है और 20th मई को आपका कंप्यूटर साइंस 2 का पेपर है, ठीक है। तो ये दोनों पेपर्स जो है इसके बीच में 10 दिन का, मतलब ये आपका मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के पेपर्स के बीच में 10 दिन का गैप है। ये 10 दिन का गैप में आप सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस थ्योरी पढ़ सकते हो। राइट नाउ यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आपके पास बहुत कम टाइम है। अगर आप ये पकड़ के चलो कि अगले 1 महीने के अंदर, दैट इज द 1st of April, आप ये पकड़ के चलो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड प्रैक्टिकल्स चालू हो रहा है, तो आपके पास 1 महीने का टाइम है जिसमें आपको एटलीस्ट, अगर आप पूरा कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ सकते, पूरे 8 चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते, तो भी आपको एटलीस्ट वो 3 चैप्टर्स जिसमें से प्रैक्टिकल्स आने वाला है वो 3 चैप्टर्स पढ़ने,
जिसमें आता है आपका C++, 8085 और HTML। ये 3 चैप्टर्स आपको थॉरली पढ़ने हैं बिकॉज इसके ऊपर आपका बोर्ड प्रैक्टिकल्स डिपेंड है। ठीक है, सो ये आपका प्रेपरेशन होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए कि बाय 30th ऑफ मार्च आपका C++, 8085 और HTML थरो हो गया। दैट इज दिस 1 month। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जर्नल कहाँ से मिलेगी? जर्नल कॉलेज देता है, ठीक है, बट कॉलेज ने अब तक दी नहीं है जर्नल। बहुत सारे कॉलेजेस ने जर्नल नहीं दी है। करना क्या होता है जर्नल में? आपको खुद बुक बाय करनी है शायद इस साल, आपको कॉलेज जाके नहीं खरीदनी है, आपको खुद ही से बुक बाय करनी है जर्नल वाली। दे विल गिव यू सम स्पेसिफिकेशंस एंड यू हैव टू देन राइट द जर्नल। हाउ? वो आपको सेम पूरा एक पीडीएफ देंगे, उसको आपको कॉपी करना है, ठीक है। अब कुछ कॉलेजेस में क्या हुआ है, कुछ कॉलेजेस में ये हुआ है कि स्टूडेंट्स को खाली क्वेश्चंस दिए, स्टूडेंट्स को ये नहीं दिया है, स्टूडेंट्स को रिटन ये नहीं दिया है कि सॉल्यूशंस नहीं दिए हैं उन्होंने, ठीक है। they've only given them questions। now because they've only given them questions, अब प्रॉब्लम हो गई है स्टूडेंट्स के लिए कि अब स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा कि पढ़े कैसे, या स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ आ रहा कि इसके सॉल्यूशंस कहाँ से मिले। now this happened in one of our students college। तो उसके कॉलेज में ये हुआ था, उसके कॉलेज में उनको यही बोल दिया गया कि आपको खुद ही पढ़ना है, आपको खुद ही जर्नल जो है आपकी वो सॉल्व करनी है, आपको क्वेश्चंस दिए जा चुके हैं, आपने लेक्चर्स अटेंड किए, खुद करो। जबकि जर्नल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एक्चुअल लेक्चर से बहुत 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 ज्यादा डिफरेंट होता है, बट स्टिल दे आस्क्ड देम टू डू दैट एंड स्टूडेंट्स फंस गए। तो हमारे स्टूडेंट के साथ में हुआ, तो हमारे जो स्टूडेंट्स थे दे न्यू, मतलब हमने ऑलमोस्ट सब कुछ, उनका बैच खत्म हो गया था, so they knew everything, so they could write almost I think 10 में से 8 प्रोग्राम्स उन्होंने लिख दिए थे। 2 प्रोग्राम्स में they were a little stuck कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, so we helped them out with that। but at the same time जर्नल का जो सॉल्यूशन है, हमने उनको बोला नहीं कि आप टीचर के पास जाओ उनके, बट इसका जो सॉल्यूशन है ये आपके कॉलेज से आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस भी और सॉल्यूशंस भी आपके कॉलेज से आने चाहिए। that's how the practicals will happen, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में अगर कोई पेरेंट्स यहाँ पे है तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, आप जब जाओगे CS1 CS2 3 घंटे मिलेंगे आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। CS1 के लिए 3, CS2 के लिए 3। आप जब हॉल में पहुंचोगे, एग्जामिनेशन क्लासरूम में पहुंचोगे, आपके सामने चिट्स रखे हुए होंगे, आपको एक चिट पिकअप करनी है, जो क्वेश्चन आपको आया आपको वो आंसर करना है, ठीक है। अच्छा, नाउ अबाउट प्रैक्टिकल्स, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स कैसे होता है? अब प्रैक्टिकल्स के 50 मार्क्स है CS1 के। अब सबको लगता है कि सही प्रोग्राम कर दिया मिल जाएंगे, नहीं, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे? आपको, आप चिट पिकअप करोगे, जैसे आप चिट पिकअप करोगे उसमें जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपको पहले करना है कंप्यूटर पे या 8085 उसके सर्किट बोर्ड्स होते हैं 8085 के, उस पे। तो आपको जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे, वो क्वेश्चन और उसका करेक्ट रिजल्ट आएगा, वो करेक्ट रिजल्ट के लिए आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। हाउ मेनी? 25 मार्क्स। 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल, करेक्ट कर दिया क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ 25 मार्क्स मिलेंगे। बाकी के 25 कैसे आएंगे? बाकी के जो 25 है उसमें 5 मार्क्स आपको बोला जाएगा, आपको क्वेश्चन आंसर लिखो अब पेपर पे, जो प्रोग्राम किया उसको पेपर पे लिखो। जब आप उसको पेपर पे लिख लोगे तो करेक्ट, सक्सेसफुली करेक्ट प्रोग्राम लिखने के 5 मार्क्स मिलेंगे। अभी भी 30 मार्क्स हुए, 25 फॉर द करेक्ट प्रोग्राम, 5 मार्क्स फॉर राइटिंग इट डाउन, बाकी 20 का है। अब ये 20 में से 15 मार्क्स आपकी जर्नल सबमिशन के लिए, ऑन टाइम जर्नल सबमिशन के लिए। जब आप अपनी जर्नल सबमिट करोगे करेक्टली तो आपको 15 मार्क्स उसके मिलेंगे। और फिर आता है लास्ट पार्ट। ये जो लास्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट में वाइवा, ठीक है। ऑन द एग्जाम डे आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर वाइवा लेगा, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अगर आपने 3 के जवाब सही दिए आपको फुल 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने एक भी जवाब सही नहीं दिया तो भी आपको 2 मार्क्स मिलने। वो वाइवा का सिंपल रूल है, किसी को 0 नहीं दिया जाता, उसमें मिनिमम से मिनिमम 2 मार्क्स तो दिए जाते हैं, ठीक है। सो ये आपका वो 50 मार्क्स का पूरा ब्रेकअप है। 25 for correct program, 5 marks for writing it down, 15 marks for journal, 5 marks for viva. The same thing applies to CS2 as well, ठीक है। So this is how it works, this is how computer science works. Now talking about books to study from, तो कौन सी बुक्स हैं जिससे आप पढ़ सकते हो? तो जो बुक्स जिनसे आप पढ़ सकते हो वो बुक्स हैं, there's a book called R.D. सुपेकर, इससे आप पढ़ नहीं सकते। अगर आपने ये बुक, आपके कॉलेज ने आपको ये बुक रेकमेंड की है कि R.D. सुपेकर से पढ़ो, तो वो बुक उठाओ और किसी को दे दो, वो बुक कुछ काम की नहीं है। मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ द सेशन बोला, मैं बहुत ब्लंट रहने वाला हूँ हर चीज के बारे में, बिकॉज आपको अगर एक चीज क्रैक करनी है यू नीड टू हैव द राइट इन्फॉर्मेशन।
RDC पे कर लो, उठा के दे दो किसको, यूजलेस बुक है वो। अच्छा, इफ नॉट RDC पे कर देन व्हाट, देयर इज अ बुक बाय निकिता पब्लिकेशन, ठीक है। फर्स्टली प्लीज नोट, कंप्यूटर साइंस की कोई ऑफिशियल टेक्स्ट बुक नहीं है, कंप्यूटर साइंस की कोई ऑफिशियल टेक्स्ट बुक नहीं है। कंप्यूटर साइंस का एक सिलेबस गाइडलाइंस है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, जिसके बेसिस पे रेफरेंस बुक्स है, ठीक है। सो दीज रेफरेंस बुक्स आर द बुक्स जिसको आप बाय करते हो। तो निकिता पब्लिकेशन आप बाय करो, RDC पे कर बाय करो, सब रेफरेंस बुक है। अच्छा, नाउ निकिता पब्लिकेशन की जो बुक है वो अच्छी बुक है, ठीक है। उसके बाद में एक और बेटर बुक है, बट वो बुक जो है वो बहुत मोटी है, इतनी मोटी खाली कंप्यूटर साइंस 1 की बुक है, और कंप्यूटर साइंस 2 की भी उतनी मोटी है। ये जो बुक है ये है TPS, TPS, ठीक है, टॉपिक वाइज पेपर सोल्यूशन। TPS ये जो बुक है CS1 CS आई थिंक 210 रुपीस की इंडिविजुअल बुक है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर बेस्ड पूरा ये मिलेगा। अब वो मोटी बुक देख के इंसान डर जाता है, but nothing to be scared about. I personally don't prefer question answer based study because it's tedious. I prefer a topic wise study. But जिसको जैसी स्टडी प्रेफर हो वो वैसे कर सकता है। सो ये जो स्टडी है, ठीक है, ये जो बुक है, इसमें क्या हुआ है, बहुत सारी जगह पे ना सेम आंसर मिलेगा आपको विद डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। तो आंसर एक ही है, लेकिन ये एग्जाम में ऐसे पूछा था, ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा था, ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा हुआ है, तो उन्होंने 4 अलग अलग जगह पे सेम क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्मेट में लिखा है। सो दैट इज व्हाट इज देयर, व्हिच इज व्हाई ये बुक इतनी मोटी हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर साइंस। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वोकेशनल एकेडमी, कि वोकेशनल एकेडमी आपको कैसे हेल्प कर सकता है, और उसके बाद में आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे हम वो क्वेश्चंस लेंगे। So Vocational Academy is an institute for computer science. We've been doing this for the last 10 years. And in COVID times, we understand that सब कुछ हेवाए गया है, and अब time बहुत कम बचा है. So what we've done is we've created a course. Now this course हमारा जो standard course है, same course है, but हमने उसको थोड़ा compress किया है और हमने 60 hours का course बनाया, ठीक है. This is designed for Maharashtra State Board. अब ये जो 60 आवर्स का कोर्स है, ये कोर्स इस तरीके से डिजाइंड है कि इसमें वेदर आपने 11th स्टैंडर्ड में कुछ अटेंड किया नहीं किया, आपको कुछ भी नहीं आता, प्रॉब्लली आपको #include_iostream.h भी नहीं पता कि क्या है, तो भी इट्स फाइन। आवर कोर्स इज क्रिएटेड इन अ मैनर दैट वी अज्यूम यू हैव नो प्रायर नॉलेज, आपको कुछ नहीं आता पहले से, आप फ्रेश हो, एकदम फ्रेश हो, आप अभी अभी आपने कंप्यूटर साइंस पहली बार देखा है, ठीक है। सो उस लेवल से उठा के आपको हम प्रॉपर्ली आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। अब इसमें होगा क्या, इसमें टाइम कमिटमेंट कितना लगेगा, कैसे होगा, तो कोर्स हमारी वेबसाइट पे होगा पूरा, ठीक है। इट्स अ वीडियो कोर्स, सो देयर आर वीडियोस व्हिच आर अपलोडेड ऑनटू आवर वेबसाइट, यू विल बी लॉगिंग ऑनटू आवर वेबसाइट, आप वहीं पे कोर्स देखोगे, वहीं पे कोर्स अटेंड करोगे पूरा, वहीं पे सारी चीजें आप हमारे वेबसाइट पर ही होने वाली है, ठीक है। हमारा पूरा स्टडी पोर्टल है। अब जब आप ये कोर्स करोगे तो इसमें टारगेट क्या है, टारगेट ये सब वीडियोस है, तो आप कभी भी देख सकते हो, आप सुबह में देखो, रात में देखो, शाम में देखो, आपकी मर्जी, बट आपको इसमें से 50 आवर्स ऑफ कंटेंट, C++, 8085 और HTML, 50 आवर्स ऑफ कंटेंट, इतना कंटेंट आपको एनी हाउ मार्च तक करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन होता, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू गिव यू दैट ऑप्शन, बट अप्रोक्सीमेटली अबाउट 40 टू एक्चुअली 45 आवर्स का कंटेंट जो है वो आपको मार्च तक खत्म करना, ठीक है। आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, अब आप बोलोगे इससे शॉर्ट एंड क्रिस्प कुछ है, नहीं, इसके नीचे वो 3 चैप्टर्स अगर 164 मार्क्स के हैं तो वो चैप्टर्स बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स नहीं है, तो उतना टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में गए अब चीज समझ ही नहीं रही, ठीक है। और मेमोराइज करना पॉसिबल नहीं है, कितना मेमोराइज करो, कितने सेमीकोलन मेमोराइज करो, हर जगह सेमीकोलन फुल स्टॉप, सेमीकोलन फुल स्टॉप, तो उसको सीखना ही है, और वो इंजीनियरिंग में भी काम आने वाली है चीज। सो अब ये जो कोर्स है, ये कोर्स इस तरीके से चलेगा कि ये कोर्स आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट राइट अवे, आप आज के दिन में चालू कर सकते हो और आप देखना शुरू कर सकते हो ना। आई अंडरस्टैंड जेई का सेकंड अटेम्प्ट आ रहा है, ठीक है। सो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दैट सर लेकिन जेई का अटेम्प्ट आ रहा है, उसके बाद में चालू करेंगे तो इट बी लेट। आप कर सकते हो, उसके बाद में भी चालू कर सकते हो, बट थोड़ा लेट हो जाएगा, आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा। अगर आप अभी चालू करोगे तो आप हफ्ते में 2-2 3-3 घंटा दो, ठीक है, स्टार्ट में। अगर आप जेई दे रहे हो तो, अगर आप जेई नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो एटलीस्ट हफ्ते में 6 आवर्स दो, ठीक है, 6 to 8 आवर्स, 9 आवर्स आप वीक का दो, या तो आप 3 घंटे 3-3 दिन दो। आपको घर पे बैठ के वीडियो देखने अपने टाइम पे, रात में 12 से 3 देखो, सुबह में 10 से 1 देखो, आपकी मर्जी।
बट हफ्ते के 3 दिन आपको इसको अलॉट करने पड़ेंगे। अगर उतना टाइम नहीं है, मिनिमम मिनिमम हफ्ते का 1 दिन 3 आवर्स देना पड़ेगा। इससे कम टाइम आप दोगे तो यूजलेस, ठीक है। और दिस इज द ओनली टाइम टू स्टडी नाउ, अब देयर इज नो टाइम रिमेनिंग आफ्टर दिस, सो यू हैव टू स्टडी इट राइट, ठीक है। अच्छा, द कोर्स कवर्स एवरीथिंग, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। अब थ्योरी और प्रैक्टिकल कैसे हैंडल किया है हमने। सो कोर्स में ऐसे होगा कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ कोर्स में, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में आपको टाइम दिया जाएगा प्रोग्राम करने के लिए। आपने अगर सही से कर लिया तो ठीक है, नहीं किया उसके इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप पे करेक्ट प्रोग्राम आएगा। तो जैसे ही करेक्ट प्रोग्राम आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपने अगर कोई मिस्टेक की है तो क्या मिस्टेक की है। प्लस व्हाट आई हैव डन इज while recording these lectures I've recorded all the live lectures. Now what's the advantage, हमारे जो लाइव बैचेस हुए मैंने उसके लेक्चर्स रिकॉर्ड किए। तो कैसे, तो उसका एडवांटेज क्या है, उसका एडवांटेज ये है कि जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे, जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी इसमें रिकॉर्डेड है। तो उसका एडवांटेज ये है कि जिसको आप में से जिसको कोई क्वेश्चन दिमाग में नहीं आएगा लेकिन किसी और स्टूडेंट ने पूछा वो चीज का, मतलब एक पूरा क्लासरूम एक्सपीरियंस जो है वो आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में मिलता रहेगा, ठीक है। बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स को लाइव लेक्चर्स में हमारे कंपल्शन होता है कि आपको कैमरा ऑन रखना ही, कैमरा ऑफ रख के चलेगा ही नहीं, आपको कैमरा ऑन रखना है और चैट बॉक्स ही हम डिसेबल कर देते हैं। अगर कोई सवाल पूछना है तो ऑडियो पे पूछना है। That's how we've always conducted lectures because I hate that chat box concept. If it's a class, it's a class. It has to be live. ठीक है. But anyway, right now we don't have the time. अगर हम live lectures रखेंगे तो आपके timings match नहीं होंगे. बहुत सारे ऐसे issues थे. So which is why we gave out these pre-recorded video lectures. So in fact, like I said, you can start today. So we'll be sending you a link in a while. ये लिंक से, ये जो लिंक आपको भेजूंगा, ये लिंक से आप आज के आज अपना कोर्स फ्री में स्टार्ट कर सकते हो। देयर आर आई थिंक 3 सेशंस फ्री। सो आप 3 सेशंस फ्री देखना शुरू करो, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। एक सेशन में समझ में नहीं आएगा तो 3 सेशंस देखो तो आपको एक आइडिया आएगा कि अच्छा कैसे पढ़ाया जा रहा है। एंड इफ यू आर कंफर्टेबल, साइन अप फॉर द एंटायर कोर्स। कोर्स की जो फी है वो फी हमारे एक्चुअल कोर्स की जो फी है वो 22,500 है। बट last month, due to COVID, a lot of parents requested, and even we understand. We understand that a physical class is different and an online class is different. So what we've done is last month we announced a 50% fee reduction. It's not exactly 50%, but हमने course fee जो है video course की हमारे 12,000 rupees कर दी है. So the course fee that you'll be paying is 12,000 rupees. ठीक है? Now, from this point onwards, we're open to questions. Whatever questions you have. Also for CS2 practicals, CS2 practicals में हमने ये किया है कि उसका एक हार्डवेयर सर्किट आता है जो घर पे अवेलेबल नहीं है, किसी के भी घर पे नहीं होगा। तो हमने क्या किया है, we recorded those videos in a way that it's right, the camera is right above the kit, and we've shown it in a way that okay, अब ये बटन प्रेस हुआ, 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 तो इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ। So it's that way we've given you the full experience की वहाँ पे मेरी शक्ल नहीं दिखेगी आपको, आपको सीधा किट दिखेगा, ठीक है। So that's how we've conducted and that's how we've done 8085. For 8085, our center is in Andheri. We're also trying to arrange a bigger space because हमारा जो space था वो 36 के classrooms थे, हमारे 36 students के classrooms थे, but with social distancing it's not possible to make 36 students in our class. As of now we have about 60 students. So 60 students को हम वो क्लास में मतलब 2 बैच में भी स्प्लिट करके 30 स्टूडेंट्स एक क्लास में नहीं बिठा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हम 9 बिठा सकते हैं as per the government laws. So what we're trying to figure out is something like an auditorium where or a huge lab space where students can come for one day and perform all their 8085 के practicals on the kit itself. ठीक है? So but this will be in Andheri West. ठीक है? You'll have to come down for one day, one particular day. That's how we've planned it. Now, like I said, open to questions. Please ask. Yes. So for this, one more thing that will happen is if you have doubts, if you have any questions, every Sunday we'll be having a doubt solving lecture where it's optional, but you can come in that doubt solving lecture. आपको 2 दिन पहले ही टाइम बता दिया जाएगा कि इतने बजे डाउट सॉल्विंग लेक्चर होने वाला है, संडे को ही होगा। इतने बजे डाउट सॉल्विंग लेक्चर होने वाला है, आप वो डाउट सॉल्विंग लेक्चर में आ सकते हो और वो डाउट सॉल्विंग लेक्चर में आके आप आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप वहां पे ही पूछ सकते हो। That will be on Zoom live.
The course fee is 12,000 rupees. Our standard course fee is 20,500. The like I said, we reduced our course fee to half for this year. For the remaining period, that would be 12,000 rupees. No. 45 minutes. 45 minutes is not for 45 minutes का तो सेमिनार है आज का. लेक्चर्स जो है वो 1.5 hour 2 hours के ऐसे लेक्चर्स है. That's why I said हम आपको एक लिंक भेजेंगे जिसमें आपको फ्री एनरोलमेंट है. पहले आपको फर्स्ट 5 लेक्चर्स 3 या 5 लेक्चर्स है कुछ, उसमें फ्री एनरोलमेंट है. आप एनरोल करो, स्टार्ट करो, आपको समझ में आ जाएगा. इट इज अ 7 days का एक्सेस मिलेगा आपको. आप 7 days का एक्सेस लो, स्टार्ट विद योर कोर्स, एंड दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड कि ओके क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी चीजें आपको उसके हिसाब से समझ में आएगी. Okay, someone asked a question. 45 hours, okay. 45 hours, yes, no, all chapters नहीं, इसमें आपके 45 hours में 3 chapters हो जाते हैं. 45 to 48 hours में C++ कवर होता है आपका 8085 होता है और HTML होता है. ये 3 chapters होते हैं आपके उसमें. ठीक है, बाकी के जो chapters आपके बच गए, इसके लिए ये chapters, because right now देखो टाइम कम है, तो 60 hours पूरा एक साथ नहीं होगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके बोर्ड प्रैक्टिकल्स आ रहा है, पहले हम प्रैक्टिकल्स के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि अब राइट अभी प्रैक्टिकल सर पे. फिर जब हमको 10 दिन का गैप मिलेगा, उसमें हम थ्योरी खत्म कर लेंगे. थ्योरी खत्म करने ज्यादा टाइम नहीं जाएगा. 36 मार्क्स के 5 चैप्टर्स है, छोटे छोटे चैप्टर्स है. ठीक है, सो वो हम फटाफट कवर कर लेंगे. बट एट दिस पॉइंट व्हाट इज नेसेसरी इज प्रैक्टिकल्स. तो वो 45 आवर्स में आपका वो 3 चैप्टर्स आपके खत्म हो जाएंगे. Will this recording be shared? I mean, of the Drishti of the seminar of this particular what I'm speaking right now. Yes, if you want, we can definitely share it with you. We'll send it to you. Just drop me a text and I'll send you the link. This will be uploaded to YouTube now. This particular video, because it's an open video, will be uploaded to YouTube. I'll share the link with you. Madhura Kadam, any questions? Drishti Jain, any other questions? Sarthak, any other questions? Most welcome, Drishti. Madhura Kadam, are you with us? Okay. Perfect, great. So with that, we'll conclude this session. Thank you so much for attending. And if you guys have any more questions, आपके पास already मेरा number आया होगा. Reach out to me whenever you want. Thank you so much. We'll end the meeting now.